مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افو خان بات کر رہے ہو بھیا؟ ہاں بھیا، ابھی آپ کی ویٹنگ آ رہی تھی، میں ایک بھائی سے بات کر رہا تھا. آپ کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ بات کر رہا ہوں بھائی جان. ہاں بتائیے عبداللہ بھائی. بھیا وہ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ ایک ہم آگرہ سے بات کر رہے ہیں. اصل میں ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہے. جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے بھائی. اچھا، تاج محل ٹھیک رہنا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، آگے بتائیے. جی ہاں جی، ایک مسئلہ تھا کہ وہ ایک دوست بتا رہا تھا ہمارا کہ ایک مفتی صاحب ہے، اس کو مطلب پریشان ہے وہ بہت سمے سے. مطلب کون پریشان ہے؟ مفتی صاحب پریشان ہے یا ہمارا پریشان ہے مفتی صاحب کی وجہ سے. مفتی صاحب کی وجہ سے؟ جی ہاں جی، ہمارا دوست اصل میں اہل حدیث ہے، سلفی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں مفتی صاحب، مطلب وہ ایک دم بہت زیادہ اہل حدیثوں کے خلاف میں ایک دم سے آگ اگلتے اور ایک دم محفل جمع کر کے جو ہے تو چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا اس کا، اور کہتے ہیں کہ سبھی کو لے کر آ جاؤ، جرنلسٹ کو لے کر آ جاؤ، اور تمہارے معراج ربانی کو لے کر آ جاؤ، جلال الدین کو لے کے آ جائیں. جاؤ. مطلب جیسے سب لوگ مطلب بھائی اپنا کام دھندا چھوڑ کے یہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑے مطلب فیمس علامہ مفتی ہیں کہ یہ ایک بار چیلنج کر دیں گے تو دنیا بھر کے لوگ ان کے آگے قدموں میں آ کے جھک جائیں گے. چیلنج تو آج کل ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، کہاں تک آتے رہیں گے بھائی. جی ہاں جی، وہ دوست کہتے کہ ملاقات ہوئی تھی ہمارے دوست کی ان سے، تو دوست مجھے بتا رہا تھا. میں بولا کہ میں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، کسی بھائی سے بات کرتا ہوں. تو پھر آپ کو کال کیا، دیکھا آپ کا نمبر پتا چلا تھا آپ کا مجھے. میں چاہ رہا تھا مطلب کیا ہوتا ہے نا بھائی جان کہ ہم بات کیے نا تو اتنی مطلب ٹھیک سے بات کرنا وہ نہیں ہوتا ہے ہم کو. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کچھ بات کرتے ان سے کچھ مسئلے کے اوپر، اور ان سے مطلب پوچھتے کہ کیا آپ چیلنجز کن چیزوں کے کرتے ہیں، ان چیلنجز کے اوپر مطلب آپ کے سوالات کیا ہے، اعتراضات کیا ہے حدیثوں پر، وہ پوچھ کر جو ہے تو آپ کچھ تو کلیریفیکیشن لیجیے ان سے. بھائی دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس ٹائپ سے میرے بھائی اہل حدیثوں کے خلاف الٹا سیدھا بولتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، آگ اگلتے ہیں، ان کو بھائی پلانا پڑے گا بھائی کتاب و سنت کا پانی، تب ان کے اندر کی جو آگ ہے بھائی وہ ٹھنڈی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے مطلب بھائی چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو لے آؤ، ججیز کو لے آؤ، ربانی کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، ڈھما کو لے آؤ، یہ لوگ کافی مطلب بھائی بدتمیز ہوتے ہیں، قاعدے سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں. تو میں مطلب میں انکار نہیں کر رہا ہوں بات کرنے کے، آپ بول رہے ہیں تو میں بات بھائی میں ابھی ان کو فون کر لوں گا، میں بات کر لوں گا. لیکن ایسے لوگ بات کرتے نہیں ہیں. لیکن تب بھی آپ کہہ رہے ہیں تو بھائی ہم بات کرنے کے لیے بھائی ہم راضی ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں. کیا ہے، کہاں رہتے ہیں وہ، کون ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، قادیانی ہیں، کون ہے وہ؟ یہ ہے دیوبندی. اپنا کیا نام ان کا ایسا بتا رہا تھا، مفتی شمس الحسن ندوی. اچھا، ندوے سے فارغ ہیں؟ ندوی ہیں، ندوے سے فارغ ہے، مفتی ہے بتا رہے. کیا شمس الحسن؟ شمس الحسن حسن. جی جی. ان کا کوئی نمبر ہوگا؟ نمبر یہ دیتے آپ کو نمبر دے دیجئے، یا تو میں ہی کال کر لیتا ہوں یا آپ کال کر کے کانفرنس پہ. خیر آپ ہم ہی کو دے دیجئے، آپ کا بیلنس جائے گا. نہیں آپ لیجئے نمبر. اچھا چلیے ہم بتاتے ہیں. ایک منٹ. مفتی شمس الحسن ندوی صاحب ہیں. جی ہاں جی ہاں، بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں، مناظر ہیں. مناظر ہے اور ایکسپرٹ بتاتے ہیں حدیثوں کے. کیا بتاتے ہیں؟ مطلب ایکسپرٹ ہے کہتے ہیں، مطلب اچھے مولویوں کو حدیثوں کے ایکسپرٹ ہے، مطلب حدیثوں کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے. اور تو ان کو تو اہل حدیث ہونا چاہیے تھا نا. اگر یہ اہل حدیثوں کے اتنے بھائی مطلب ایکسپرٹ ہیں تو یہ بھائی اپنے آپ کو کہیں کہ میں اہل سنت اہل حدیث ہوں. یہ ندوی کب سے بن گئے؟ خیر ان کا نمبر بتائیے بھائی ذرا، آپ کے کتنے ایکسپرٹ ہیں. 9936 9936 20 46 جی سوری 64 نہیں 46 یا 64 64
देखिए मैंने जो नंबर नोट किया है वो है 993620 6463। ठीक है जी ठीक है, मैं लाइन पे इनको लेता हूँ, आप एकदम चुप रहिएगा, ठीक है। जी हाँ जी हाँ ठीक है। जी जनाब। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी शेख, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई। जी सब खैरियत से हैं आप? जी कौन साहब आप? जी मैं अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। हमको जो आलिम दीन है उनसे बात करनी थी, मुफ्ती साहब से, शमसुल हसन साहब से। जी क्या काम है मुफ्ती साहब से? जी वो थोड़ा मतलब उनकी थोड़ी मदद हमको चाहिए थी कि मतलब माशाल्लाह वो मतलब बोलते हैं कि कोई भी अगर आ जाए गैर मुकल्लिद अहले हदीस तो मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जवाब दे दूंगा, दलाल दे दूंगा। तो एक से हमारी बात हो रही थी तो वो हमको मतलब बोला कि अहले हदीस का एक ऐसा अकीदा, एक ऐसा अमल हमको बता दो जो भाई कुरान हदीस से टकराता हो तो हम तौबा कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमको तो इतना मालूम नहीं है, मालिम साहब से पूछ के बताते हैं। तो आपका नंबर गांव में हमको एक भाई ने हमको दिया है, तो बोला कि इनसे बात कर लो, ये यहाँ पे आते हैं। तो हमने कहा चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। तो क्या मतलब इनका अकीदा मतलब कौन सा है, मतलब थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि उनको उनको हम बताएं, उनकी इस्लाह हो जाए। आप उनकी इस्लाह न करके आप डायरेक्ट उनको मुफ्ती साहब से मुलाकात कराइए, क्योंकि आपसे फिर सवाल करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? जी आप डायरेक्ट मुलाकात कराइए किसी आलिम साहब से। नहीं, वो तो दूर रहते हैं ना। आप कहाँ रहते हैं? जहाँ भी रहते हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितना लंबा सफर करके जाते थे एक तो हदीस वही के तो लिए। सफर करने के लिए आना पड़ेगा ना उनको। तो आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं आप? आप उनको एड्रेस ले आइए लखनऊ। अच्छा लखनऊ में रहते हैं? जी जी जी, अरे तो लखनऊ तो बहुत पास है इलाहाबाद से, तो वो आ भी जाएंगे। तो थोड़ा कुछ मतलब थोड़ा हमको बता देते क्या उनका अकीदा मतलब गलत है। नहीं तो डायरेक्ट वो बात करें ना, आपको बीच में पूछने कोई मसला ही नहीं है। या अगर आप खुद अहले हदीस होंगे तो आपको खुद आपका अकीदा मालूम होगा। नहीं, अहले हदीस के बारे में जहाँ तक हमने मतलब देखा है, सुना है, पढ़ा है, लोगों से बात की है, तो मतलब देखने में तो नहीं लगता है कि हाँ भाई खराब है। कोई ऐसा बातनी अकीदा हो जो आपको मतलब भाई पता हो तो आप थोड़ा बता दीजिए। जी तो जो सामने होगा उसी से बात होगी, आपको उस पे नहीं है तो कोई मसला ही नहीं ना। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप आलिम दीन है, मुफ्ती इकराम में, अगर आपसे कोई चीज पूछ रहा है तो आप उसको बताएंगे ना वजाहत के तौर पे। लेकिन मैं तो सामने बताएंगे। नहीं तो क्या ये भाई इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा है कि खाली मतलब फेस टू फेस बात करना, आपकी फोन पे आवाज बात ना करना? आ रही है। नहीं, वो बोले थे कि जो इमाम साहब हैं वो एक टांग पे नमाज पढ़े थे, तो हनफी लोग काहे के लिए नमाज नहीं पढ़ते हैं? बात समझ में नहीं आ रही, फिर से लगाइए। जी आवाज आ रही है मेरी? फिर से लगाइए, फिर से काट कर लगाइए, आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज साफ आ रही है शेख? अब आई आवाज? जी आवाज साफ आ रही है अब? हाँ बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनका एतराज है कि जो आपके इमाम साहब हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, उन्होंने खाने काबा के अंदर एक टांग पे नमाज पढ़ी, तो हनफी लोग काहे के लिए एक टांग पे नमाज नहीं पढ़ते हैं? आपके इमाम साहब का मतलब ये है कि आप खुद अपने आप को अहले हदीस कहते हैं क्या? नहीं, उन्होंने मेरे से बोला कि आपके जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह हैं वो एक टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, तो आप क्यों नहीं एक टाइम पे नमाज पढ़ते हैं? तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके इमाम ने जब एक टांग पे नमाज पढ़ी तो आपका एक टांग पे नमाज नहीं पढ़ते हैं? तो ये सवाल आप उनसे कह दीजिए, सामने आकर के करें। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। चलिए मान लीजिए कि मैं ही अहले हदीस हूँ, अब बताइए इसका जवाब उनको हम क्या देंगे? तो आप खुद अहले हदीस हैं तो आप खुद सामने आ जाइए। तो ये कौन सा बात होती है? आप चैलेंज इतने लंबे लंबे करते हैं, मिराज रब्बानी को लिया हो, जदीद अंसारी को लिया हो, अब फोन पे जरा सा सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सामने आकर के बात करिए। इमाम तो बुखारी सामने क्या आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा है कि नहीं कोई सामने आएगा तभी बात करेंगे?
इमाम आदम अबू हनीफा ने नहीं कहा, तो अल्लाह के नबी ने कहीं हदीस में कहा है कि फोन के ऊपर जवाब अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, दीन की बात मेरे भाई कहीं से भी अपना हासिल कर लो, चाहे फोन से हो, मोबाइल से हो, आमने सामने हो, किताबों से हो, कहीं से भी हासिल करो। इल्म हासिल करना है ना कि मोबाइल पर जवाब दीजिए। मोबाइल की कोई एक रिवायत, कोई अरे मोबाइल कोई मेरे भाई वो थोड़ी ना है, मोबाइल तो एक असबाब है ना, असबाब का इनकार, आप कुरान की असबाब का इनकार कर रहे हैं या अल्लाह के नबी का कोई फरमान पढ़िए जिसमें नबी ने फिर बरेली वाली बातें शुरू कर दी आपने। आप कौन है, नजवी है कि बरेली है, या मेरे भाई वो छुपे हुए कादियानी है? आप कोई रसूल आप पढ़िए या कुरान की कोई आयत मुफ्ती साहब आप कौन है, छुपे हुए कादियानी है क्या आप? ने ये इरशाद फरमाया हो मोबाइल एक असबाब है, जो असबाब का इनकार करता है उसकी अकल में कमी होती है। आप असबाब का इनकार करते हैं। मोबाइल पर जवाब दीजिए तो ये आप अच्छा ये बताइए, मोबाइल पे अगर आप बात नहीं करते तो फोन अपना तोड़ के फेंक दीजिए ना। अरे आपका जिन जाग के लग रहा है मुफ्ती साहब, बताइए। अभी मैंने अहले हदीसों की तरफ से एक सवाल पूछा है तो आपका जिन जाग गया। सोचिए अगर खुद अहले हदीस आपके सामने आ गया तो आपका क्या होगा? आपने खुद कहा मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कुरान की कोई एक आयत पेश करें जिसमें नबी ने ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया हो कि मोबाइल पर जवाब देना जरूरी है। नबी ने अपने किसी चीज रसूल में फरमाया हो कि मोबाइल पर जवाब देना जरूरी है। मैंने आपसे कहा आपको दलील दे रहे हैं। आप सुनिए भाई, जो आपने इंजन पी रखा है उसको पूछिए, मेरा जवाब सुनिए। कुरान की कोई आयत पढ़िए। अरे पढ़ रहे हैं ना, चुप रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। क्या यार, अल्लाह रहम करे, कैसे लोग मुफ्ती बन जाते हैं आजकल। बात तो सुनिए कम से कम। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन का इल्म हासिल करना हर मोमिन औरत और भाई आदमी के ऊपर फर्ज है। तो मोबाइल कहीं से भी इल्म हासिल करे, चाहे वो किताब हो, मोबाइल हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, फेस टू फेस हो। कोई आयत पेश नहीं कर सकते हैं। अरे आप आयत पेश नहीं कर सकते हैं ना, आपके इमाम ने एक टाइम की नमाज पढ़ी, आप साबित ही नहीं कर सकते हैं। आपका दिन जाग गया। इसलिए फर्जी चैलेंज करना छोड़ दीजिए। चंदा मांगने वाले आप दो कौड़ी के मुफ्ती हैं, मुफ्त के मुफ्ती बने हुए हैं, आप मुफ्त के मुफ्ती बने हुए हैं, चंदा मांग मांग के अपना पेट भर रहे हैं, अहले हदीसों के खिलाफ जहर उगलते हैं। जब आपसे मैंने अहले हदीसों की तरफ से एक सवाल का जवाब पूछा था तो आप बौखला गए। ये किसने मुफ्ती आपसे बनाया है? नकल करके पास हुए क्या? अरे भाई नकल करके पास हुए क्या? भाई आपके अब्बा जान का कोई नौकर नहीं है। भाई आपके अब्बा जान का कोई नौकर नहीं है कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ। हम कह रहे हैं आप आ जाओ, आप इससे बड़े अल्लामा हो, आप आ जाओ, चलो आ जाओ, आप आ जाओ ना। आप इससे बड़े मुफ्ती बने हो भाई, चंदा लेने के लिए गाँव आप जाते हो तो जरा बात करने के लिए भी आ जाओ, जरा एक बार आ जाओ ना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने एक टाइम पे नमाज पढ़ी, आप कब पढ़ेंगे एक टाइम पे नमाज? अरे आप झूठे की नौकरी खुद ही बैठे हुए, आप झूठे मुफ्ती हैं, आपको बात करने के आदाब नहीं पता है, आपको दलील मानने की अकल नहीं है। अभी कल को आप कहते हो जो समोसा खा रहे हो कुरान से साबित करो, जो बिरयानी खा रहे हो कुरान से साबित करो, जो नहारी खा रहे हो कुरान से साबित करो, जो शैम्पू लगा रहे हो कुरान से साबित करो, तुम साबुन से नहा रहे हो कुरान से साबित करो। तो आपको मेरे भाई आपको सवाल करने की तमीज नहीं है। आपने जिस कंपनी का इंजन ऑयल पी लिया है उसको थूक दीजिए अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे आपका जिन जाग गया, पसीना पोंछ लीजिए, औज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, सुकून से बात कीजिए। अरे अल्लाह रहम करे, कैसे लोग मुफ्ती बन जाते हैं। इसको शेयर करिएगा, लेकिन भाई आप मुफ्ती नहीं है, आज यकीन हो गया अल्लाह के बंदे, बुरा ना मानिएगा, आप मुफ्ती हो नहीं सकते। जिसके अंदर सब्र ना हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, और आपके अंदर तो सब्र नाम की चीज ही नहीं है। वाह वाह वाह, बड़ी ताकत है, मतलब कंटिन्यू बोले चले जा रहे हैं, बोलते रहिए, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी दुम पे पैर पड़ गया, आपकी दुम पे पैर पड़ गया। अरे चैलेंज क्या है, चैलेंज करते रहोगे, सामने वाले की सुनोगे नहीं तो ऐसा चैलेंज अपने दिल में रखो ना। जब चैलेंज करते रहोगे, सामने वाले की सुनोगे नहीं तो ऐसा चैलेंज अपने घर में अलमारी के अंदर बंद करके रखो। भैया भैया ठीक है भाई, बेवा औरतों की तरह मातम ना कीजिए।
अरे बेवा औरतों की तरह मातम ना कीजिए, आपकी हकीकत अभी आवाम के सामने आएगी। मैंने खुद पहले हदीस बन की बात नहीं की तो आपका ये हाल है। पहले हदीसों का खाली एक सवाल पूछा तो आपकी हालत टाइट हो गई। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं फुरकान अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरी जमात को आपसे चैलेंज करता हूँ, ताकि क़यामत तक अहले हदीसों का एक अमल एक अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ साबित कर दो। मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। अगर दम हो तो चैलेंज कबूल कर लेना। आपका लामा भागते मेरे नाम से, आपकी इल्मी औकात नहीं बात करने की, दर्जी मुफ्त के मुफ्ती बने हुए। अरे मुफ्त के मुफ्ती चुप हो जाओ, अल्लाह के बंदे चुप हो जाओ। लखनऊ आने के बाद भाई आपको लग रहा है पागल हो गए। आपकी ये कैफियत हो गई है ना भाई आगरा जाइए, आगरे में पागल खाना है, वहाँ पे जाके अपना इलाज कराइए। हमें पागल खाने में जरूरत नहीं है। आपने लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जाके अपना इलाज कराइए। जाने की जरूरत है। लखनऊ में जो नक्काश में अजमेरी गेट के आगे शामीना शाह की दरगाह है वहाँ जाके फातिहा पढ़िए। और आपको पागल खाने में जरूरत है। आपको दरगाह की पावर हासिल हो, थोड़ा सब्र आपके अंदर है। और जो अहले हदीस तमाम की तमाम आप खुद ही अकेले बड़बड़ाते रहेंगे, आईने के सामने बात कर रहे हैं। क्योंकि जो पागल अभी तो कह रहे थे फोन पे बात नहीं करते, मतलब फोन पे चैलेंज करना जायज, दीन की बात करना जायज नहीं है। ये कौन सा उसूल आप लेके आए? टोपी नहीं रखता है ना। आप हमें कुरान से साबित कर दीजिए कि फोन के ऊपर चैलेंज करना जायज है। आप कुरान की एक आयत कर दीजिए कि भाई किसी को फोन के ऊपर मोबाइल के ऊपर चैलेंज करना जायज है। चलिए बताइए। भाई हमें पता है चंदा मांग मांग के आपका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा ये बताइए कमाई कितनी होती है चंदे से आपकी? आपने कोई हदीस भाई चंदे से कमाई कितनी होती है? मोबाइल के ऊपर जवाब देने के मुतालिक तो भाई जवाब का पहला उसूल ये होता है कि सामने वाला सवाल करे तो जब आप हदीस रसूल सामने वाला करीब जवाब दे तो सामने वाले को सुनना पड़ता है। कुरान को मानते हैं, जवाब आप सुनेंगे, आपको दम है, एक मिनट का उसूल बांध लीजिए ना। अगर वाकई आप भाई अपने दावे में सच्चे हैं तो एक मिनट का उसूल बांध के बात कीजिए ना, आपके तमाम सवाल का जवाब देंगे। अल्लाह के बंदे कौन मुफ्ती बना दीजिए, जिसने आपको मुफ्ती बनाया उसको मेरे पास लेके आइए, बीच से मारूंगा जिसने आपके ऐसे जाहिल बड़बड़े को मुफ्ती की डिग्री दे दी है उसको मेरे पास लेके आओ, बीच जूते मारूंगा उसके मैं। तुम्हारे ऐसे जाहिल को किसने मुफ्ती बना दिया? मतलब पहले चीजों से इतनी नफरत है, इतना बुद्ध है कि मतलब बोलते चले आ रहे जाहिल आदमी तू बताना, एक मसले पर बात करना उसी की रोशनी में। अरे भैया शैतान के बंदे, एक टॉपिक में उसूल से बात कर लो, अभी पता चल जाएगा कौन किसको पानी में। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उन्होंने खाने काबा के अंदर एक टांग से नमाज पढ़ी। अब अगर तुम वाकई हनफी मुकल्लिद हो, सच्चे हनफी हो तो एक टांग से नमाज पढ़ो। तुम्हारी दुर्रे मुख्तार की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 44 पे लिखा हुआ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 हज किए। एक हज करने गए तो खाने काबा की चाबी ली और खाने काबा के अंदर 2 रकात से नमाज पढ़ी। एक टांग पे खड़े होकर आधा कुरान, फिर दूसरी टांग पे खड़ा होकर आधा कुरान। तो अगर तुम वाकई असली हलाली हनफी हो, अगर हनफी हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के तलवे के रखने वाले अगर तुम हनफी हो तो बेटा एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ के अपना वीडियो बना के भेजो। कि मैं पहले हनफी हूँ, एक टांग पे नमाज पढ़ के वीडियो अपना भेजो अगर अपने दावे में सच्चे हो। तुम मुफ्ती नहीं हो, क्योंकि कोई भी मुकल्लिद मुफ्ती हो ही नहीं सकता है। भाई जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो मुफ्ती थोड़ी ना होता है। इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह इजमा नकल करते हैं कि जो भी मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता है, वो जाहिल होता है। आप क्या करते हो? तुम्हारे मौलवी ने किताब में अरे भैया किसी एक टॉपिक पर बात करोगे कि नहीं? मौलवी ने लिखा है कि इजमा तो शैतान का अमल है। अरे किसी एक टॉपिक पर बात करोगे दम है? पानी पी लो, पानी पी लो। कर रहा हो, पानी पीने की जरूरत नहीं है, पानी तुम पी लो। भाई थक गए होगे, ज्यादा ना चिल्लाओ, फेफड़े अलग से बाहर आ जाएंगे आपके। अल्लाह के बंदे बात करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं आपको अल्लाह का बंदा कहूँ या शैतान का बंदा कहूँ, आपने कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि लक़ब आपने लगा रखा है मुफ्ती का और बात कर रहे हो जाहिल से की बदतर, सामने वाले की सुन ही नहीं रहे। भैया क्या तकलीफ कर रहे हो क्या? भाई हम चंदा नहीं देने वाले तुम्हारे जैसे जाहिलों को, हमारे सामने तकलीफ करके कोई फायदा नहीं है।
जाके गाँव जाके जो बेचारे अगर कौन अपने गाँव जाके जो बेचारे कम इल्म है जाके उनके सामने भौंकना, मेरे सामने ना भौंकना, नहीं गलत में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा। अगर तुम कहो जाहिल मुफ्ती, अभी जाहिल आदमी हो कहाँ तुम? वाला नहीं हो तुम भाई लखनऊ में कहाँ रहते हो? अगर तुम्हारे अंदर नदवी हो, लखनऊ में रहते हो, नदवे में रहते हो, मरकज में आते हो हर जुमेरात को, हर जुमेरात को लखनऊ में आते हो मरकज में जवाब देना बात की भाई में सामना करूंगा, तुम्हारे सामने आऊंगा। अरे यार मेरे सामने नहीं आओगे तुम मर जाओगे, नहीं आओगे, क्योंकि जो फोन पे नहीं बोलने दे रहा वो सामने के घंटा बोलने देगा। लेकिन कुरान की एक आयत पढ़ो, जब तक तुम कुरान की एक आयत नहीं पढ़ोगे कि मोबाइल का जवाब देना जरूरी है, आराम से भौंकते जाइए, तुम्हारा पाबंद नहीं हो, मैं तुम्हारी बात के जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूँ। एक हदीस रसूल पढ़ दो, मेरी जिम्मेदारी अकेले बोलते जाएंगे क्या? अब मैं तुम्हारा भैया हो गया, अभी करता क्या? बाकी चंदे की कमाई में बरकत है, मतलब बहुत ताकत आ गई है चंदे का खा के, साले बन जाओगे भाई चंदे का खा के बहुत ताकत आ गई, मतलब कंटिन्यू बोलते यार बोलो भैया, खाने भी लेकर के जाते हो, भाई आपका बीपी बढ़ जाएगा, अटैक पड़ जाएगा, मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। आप एक काम करो, 7 रोज से पहले पानी पी लो, अभी तो आपने भाई आपका बीपी बढ़ जाएगा। मतलब जितनी देर मोबाइल पे आपने मेरा चैलेंज जितना जहर उगल दिया है उतनी देर में अगर आपके दम होता तो किसी एक टॉपिक पे बात कर लेते। आप मुफ्ती हैं, मैं आपको इज्जत दे रहा था, कितने प्यार से आपसे बात की, और आप हो कि आपका मेरे में दिमागी संतुलन खराब हो गया। 8 मिनट 35 सेकंड मेरी ईशा की नमाज में बाकी है, आप चाहो तो इस मौके पर जवाब दे दो, कुरान की कोई आयत पेश कर दो या रसूल पेश कर दो जिसमें नबी ने फरमाया हो कि मुफ्ती शमसुल हसन से पूछो तो उसको मोबाइल पर जवाब देना। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह के नबी की जबान से हम तुम्हारे जैसे जाहिलों का नाम साबित करें? नहीं, अल्लाह के नबी की जबान से तुम्हारा नाम साबित करें। अरे नबी की जबान से कुरान का नाम आया है, नबी की जबान से ऐसा नहीं मानोगे, तुम्हारे साथ दूसरा इलाज करना पड़ेगा। जबान से काफिरों का नाम आया है, भाई आपके साथ दूसरा इलाज करना पड़ेगा का नाम आया है। तो आपने एक मेरे भाई मुफ्ती आपको आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के थोड़े फतवे बता देते हैं ताकि आप उनके ऊपर अमल करके मेरे जन्नत में दाखिल हो जाएं। आपकी जो मुख्तार मुस्कुरा हुआ है कि कुत्ते को रोक में लेके नमाज पढ़ना चाहिए, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना चाहिए, कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना चाहिए, कुत्ते की खाल को रख के सुखा के या नमाज बना के उसके ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए। तो आप पहले कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़िए ना, वो भी एक काम से खड़े होके, तब हम मान लेंगे आप उनकी मुकल्लिद है, ऐसे कोई ना मान लेंगे। आप इसको सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, बराए काम इसको शेयर करिएगा। मेरे भाई आप खुद ही बर्बाद कर रहे हो, आप कहाँ शेयर करेंगे? मुफ्ती नहीं हो, शेयर करते हो। अगर दम होता तो किसी एक टॉपिक पे उसूल की रोशनी में आलिमाना अंदाज में आप बात करते, लेकिन आपकी जाहिलों की तरह खुद ही बदला रहे हैं। शहर में क्या भाई आईने के सामने बात कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? के साथ बयान करता है। अरे भैया आईने के सामने बात कर रहे हैं, मैं आपको और आपके पूरे टोलों को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वाकई हनफियत की हलाली पैदाइश है आप तो एक साल पे नमाज पढ़ के उसका वीडियो भेजिए। हेलो वालेकुम सलाम। भाई ये कौन सा मुफ्ती था यार, इसका नाम तो होना चाहिए इंजन ऑयल बाबा। खुद ही बोलता जा रहा है, इसका ऐसा जिन जाग गया। मैंने आपसे पहले कहा था फोन करने से पहले कि ये लोग जो फर्जी चैलेंज करते हैं ना, ये कभी बात नहीं करेंगे, ये खाली मुगालता देंगे, सामने आओ, नहा के आओ, धो के आओ, साबुन लगाओ, तेल लगाओ, ये सब इनका यही मुगालता रहता है। हमारे सामने वही यही हमारे सामने ऐसे करता हूँ, क्या बोले तुम कुरान से साबित करो, हदीस को हदीस से। अरे भाई एक चीज बताइए, मोबाइल पे अगर कोई इंसान दीन की बात कर रहा है तो क्या ये हराम है? या अगर मान लीजिए कि जो फोन है, मोबाइल है, इस पे जवाब देना, भाई अगर मान लो भाई ये गलत है, ये साबित नहीं है कुरान हदीस से, तो मुफ्ती साहब को अपना फोन तोड़ के फेंक देना चाहिए ना। मतलब इतनी देर से बड़बड़ा रहे हैं 20 मिनट से, वो सही है, लेकिन बात करना गवारा नहीं है। अरे 20 मिनट में अगर इन्होंने कायदे से बात की होती तो एक मसला सामने आ गया होता आवाम के कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हक पे कौन बातिल पे। लेकिन इनका मामला क्या है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू। भाई जो फोन है, मोबाइल है, ये असबाब है, असबाब।
असबाब का जो भाई इनकार करता है ना, उसके अकल में कमी होती है। ठीक। हाँ भैया। और दूसरी चीज ये है कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन का इल्म हासिल करना हर औरत के ऊपर और भाई वो मर्द के ऊपर, मोमिन के ऊपर ये फर्ज है। तो दीन का इल्म की हम बात कर रहे थे ना उनसे, भाई इल्म हासिल कर रहे थे ना कि भाई अहले हदीसों का एक अमल, एक अकीदा बता दो जो भाई किताब सुन्नत से साबित ना हो, ये हम इल्म हासिल कर रहे थे ना। अब वो हम फोन से करें या आमने सामने करें या कंप्यूटर से करें या वीडियो कॉल पे करें या व्हाट्सएप पे करें या फेसबुक पे करें, बात तो दीन की हो रही है ना। इसमें ये कैद कहाँ से आ गई कि खाली फेस टू फेस बात करना है। अपने इमाम का फतवा दो। अगर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी हनफी फिका में ये कहा हो कि दीन की बात खाली आमने सामने करना, फोन पे ना करना, मोबाइल पे ना करना, या मतलब भाई किसी असबाब से ना करना, तो हम कहते पहले के लोग जो दावत देते थे ना वो कागज पे लिख के देते थे, खत खतूत। अल्लाह के नबी ने बादशाहों को भेजे खत, उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी। तो ये उस दौर का भाई ये असबाब था ना। अगर उस दौर में भी फोन होता, मोबाइल होता और अल्लाह के नबी अगर उसका इस्तेमाल भाई वो ना करते तो आज की तारीख में हम भी ना करते। लेकिन असबाब वहाँ पे भाई उस दौर में क्या था, उस दौर में चलता था खत, लेटर। तो अल्लाह के नबी ने उसका इस्तेमाल किया। आज हमारे टाइम पे क्या आ गया है, आज अल्लाह ताला ने भाई इंसानों को इतना दिमाग दे दिया है कि इंसानों ने बना दिया फोन, तो अब हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये मुगालते बाजी है कि उसको लेके आओ, जदीद को लेके आओ, मेरे आज रब्बानी को लेके आओ, नायक को लेके आओ, डमा को लेके आओ। अरे क्या तुम्हारे अब्बा जान का नौकर हूँ मैं? तुम अपने से बात ही कर रहे हो सीधे से, तुमसे क्या करेंगे उन लोग? भाई ये इन लोगों की चाल होती है, जानते हैं कि अगर किसी का फोन आया है, अगर इससे हम बात करेंगे तो अभी हमारी पोल खुल जाएगी, तो जो चंदा हमको मिल रहा है वो चंदा मिलना बंद हो जाएगा। तो ये ऑडियो भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है? आप इसको अपने पूरे गांव में या अपने दोस्त को भेज दीजिएगा कि उनके गांव में जो जो लोग आते हैं इनको चंदा देते हैं, इनकी दावतें करते हैं और इनको बैठा के किताब और सुन्नत का रद्द करवाते हैं, उनको सुना दीजिएगा ताकि वो मतलब जो हमारे भोले भाले जो आवाम है उनको बेवकूफ ना बना सकें। ठीक है? और इनको तो मैंने चैलेंज कर दिया है, अगर ये वाकई हलाली हनफी होंगे तो ये एक टांग पे नमाज पढ़ के अपना वीडियो अपलोड करेंगे। अगर इन्होंने वाकई एक टांग पे नमाज पढ़ी और एक टांग पे खड़े होके इन्होंने आधा कुरान पूरा पढ़ लिया बिना मतलब भाई गिरे, तब तो मैं मानूंगा कि ये हनफी मुकल्लिद हैं, वरना ये मेरे भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की पैरों की धूल भी नहीं है। हाँ सीधी बात। और 2 नंबर थे अपने, एक जरा मुफ्ती मतलब एक मुफ्ती साहब के घर मलकापुर के हमारे मतलब मस्जिद के नाम से अभी कुछ मसला हो गया तो वापस गाँव चल गए। तो वो जो उनका जहन अच्छा है एलर्जी के बारे में, उनका जहन अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ बोलते नहीं, लेकिन एक बार उन्होंने बाहर में बोल दिया एलर्जी में वो चुटना है। मतलब मेरे हिसाब से मैं दबाव में आके बोले थे, जैसे उनको मसला पूछा अगर रफा जान का तो वो उनको अफजल तरीके रफा जान, मतलब जहन भी अच्छा बने उनका, मतलब सही या गलत बात भाई आपने इस मुफ्ती का नंबर हमको दे दिया है ना, अब हम इसको झेल लेंगे। अभी हमारी हेडेक है, आप परेशान ना हो भाई। हम भी इलाहाबाद में रहते हैं, लखनऊ में भी हमारे जान पहचान के काफी सारे लोग हैं। लखनऊ हमने घुमा हुआ है पूरा, जब भी लखनऊ आएंगे जाके इनसे मिल लेंगे, देख लेंगे कितने बड़ा अल्लामा ये। तो हमसे जब आपसे कांटेक्ट होगा उनका तो हमको भी कर लेना है, चैन वगैरह वीडियो बनाएंगे आप। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अच्छा रखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।